Pradhan ji and General Secretary of EFI Sri Ramprasad Midakar for this initiative, because this initiative has bring us a lot of knowledge and information regarding the volleyball in this lockdown situation. And I also would like to extend the thanks to entire team of NSSC Bangalore, those who are working behind the success of this program. Respected coaches and my dear friend, as you all know that we are in the last phase of this program, and we have been fortunate to meet very, very great coaches of our nation, like our national coach and Arjuna and Dronacharya Awardee, Shri Dharan sir, M.H. Kumara sir, Pramesh sir, P.S. Chauhan sir, Dr. David Matthew, and Mohammad Kalandar sir, who will be sharing his knowledge tomorrow after this lecture. And last but not the least, my mentors and my colleagues from NSNI Patiala, Shri Daljeet Singh ji and Dr. Ajay Jangra. Okay, for me it's a matter of great pleasure and pride to share this platform with these such great personalities. Okay, now today's lecture is recovery strategies in volleyball. What kind of recovery strategies we can adopt at the time of training of volleyball players? Okay, Ankush, can you see my shared screen? Yes, we can see. Okay. Thank you. So, as we all know that most of the time athletes spend their more time athletes spend their for their training for the recovery strategies instead of training. And for best performance, we have to do use a lot of strategies to recover the players. So, learning objective of this class will be, first of all, I would like to share some knowledge regarding what is recovery. हम रिकवरी किसको बोलेंगे, देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिकवरी स्ट्रेटजीज, उन रिकवरी स्ट्रेटजीज के क्या बेनिफिट है, आफ्टर दैट व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ रिकवरी. ओके, देन एक्सरसाइज इंड्यूस्ड फटीग, कि फटीग क्या है और एक्सरसाइज से जो फटीग आती है उसका क्या मैग्नीट्यूड है, क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होंगे. देन वेरियस ट्रेनिंग मेथोडिकल रिकवरी स्ट्रेटजीज, एंड in addition to that the other recovery strategies like water immersion therapy, massage, and etc. So first I will start with the introduction. As you all know that players, our ultimate purpose of training is to gain maximum performance. हमें क्या चाहिए, maximum performance चाहिए किसी competition के दौरान. Then the training process is a cyclic process. First we have to do training, then we have to recover, and then we will adapt. तो ये process चलता रहता है continuously. Okay. और apart from that, we face several professional and social demands. जैसे body ही जो हमारी है, वो training से fatigue तो आएगा ही आएगा, but apart from that, like job, school, social demand, family system, these things also put stress on the body. And most important thing is we have to recover from these additional and training demands. As we see the structure of volleyball game, we come to know that the time between practice and which is not sufficient for complete recovery. Most of the competition we have to play per day one match or sometimes two matches a day. Okay, and the top performance can be achieved by the athletes, those who are able to recover faster. जो एथलीट बहुत अच्छे से रिकवर कर सकते हैं, जल्दी रिकवर कर सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं कंपटीशन के अंदर एक एज मिलेगा, एक एडवांटेज मिलेगा. एंड टू enhance the process of recovery, we have to use several recovery modalities. Okay, now the question arises, what is recovery? Recovery क्या है? Then recovery is the process in which body responds to the load for the adaptation. हमारी बॉडी क्या करेगी, हमने बॉडी के ऊपर वर्कआउट किया, कंपटीशन खेला, बॉडी के ऊपर लोड आएगा, तो जब बॉडी उससे अडाप्ट करती है, that will be considered as a recovery. That will be internal and external as well. Load internal भी होगा और external भी होगा. So when our body is adapting from that internal and external load, that will be called as a recovery. And as per the homeostasis principle,
री-एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इनिशियल स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस। जो हमारे बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है जिसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं, उसको हमें री-एस्टेब्लिश करना है, रीगेन करना है। When we are participating in a match or in a training program, then our homeostasis, the internal environment of our body will be disturbed again and again in training sessions and competitions. Then when we are returning towards that stage, that environment, that homeostasis condition, that will be considered as a recovery process. Okay. And one most important thing, our recovery process is a multi-dimensional process. When we are getting recovery from physical demands and physiological demands put on the body, then the recovery process will be multidimensional. Like you can see this graph, like physical dimensions are joint stability, tissue healing, improved range of motion and strength. Likewise, physiological, improved heart rate, blood markers, hormonal changes, rating of perceived exertion, better immunity system, and psychological mood status, motivation, sleep pattern, and social support. Social support. All these things will have on process of recovery. Then we have discussed about the recovery. Then what are the advantage or benefits of different recovery strategies? The first and foremost advantage is accelerated adaptation to the training response, training stimulus. जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उससे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि our body will get fatigued and process of recovery will start. So if we are using various recovery strategies, then that recovery process will be speed up. Then improved performance capacity. The performance capacity will improve, and minimization of non-adaptive response to training and competition. जो हमारे नॉन अडाप्टिव रिस्पॉन्सेज हैं ट्रेनिंग के, वो मिनिमाइज हो जाएंगे, हमारी हेल्थ है वो बेटर होगी, बर्नआउट का प्रॉब्लम ज्यादा रहेगा, देयर विल बी लेस चांसेस ऑफ इंजरी. दीज आर द मेजर बेनिफिट्स. बहुत सारे और भी हैं, बट दीज थ्री आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ रिकवरी स्ट्रेटजी. ओके, नाउ व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द रिकवरी प्रोसेस? वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी रिकवरी प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे? द फर्स्ट वन इज ट्रेनिंग, नेचर ऑफ ट्रेनिंग. हमारी ट्रेनिंग का नेचर कैसा है, द काइंड ऑफ ट्रेनिंग वी आर अंडरगोइंग, द लाइकवाइज आवर परफॉर्मेंस रिकवरी प्रोसेस विल बी. Okay. Then second one is nutrition. The nutrition intake, the quality and quantity of nutrition intake, that will affect the process of recovery. Travel, if you are traveling, if there are shift between time zones, then recovery process will be affected. Daily routine, what kind of daily routine athlete is following, that will affect his recovery process. Fitness level, if you are highly fit, then recovery, obviously recovery will be faster. And psychological status, मूड कैसा है आपका, नेगेटिव इमोशंस कैसे हैं, दैट विल आल्सो अफेक्ट द रिकवरी. एज वेल एज जेनेटिक्स, आपने अपने पेरेंट्स से कैसे जेनेटिक्स लिए हैं, आपके जेनेटिक्स कैसा है, दैट विल आल्सो अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ रिकवरी. देन एनवायरनमेंट, यू आर वर्किंग इन वेरी कोल्ड एनवायरनमेंट और वेरी ह्यूमिड और एक्सट्रीम हॉट एनवायरनमेंट, दैट विल आल्सो अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ रिकवरी. देन यूज ऑफ रिकवरी इंटरवेंशन, which kind of recovery process are being used by you or athletes, that will also affect the recovery process. Regarding these interventions or recovery modalities, we are going to discuss later on. Then quality and quantity of sleep. What is the quality of athlete's sleep and quantity? How many are he going to sleep? Then physiology and age. If adult athletes are tend to recover slower as compared to young athletes. Then now we have discussed about the fatigue. Fatigue क्या है, उसके we have discussed about the recovery. Recovery क्या है, and what are factors which affect the recovery, and what are the benefits of using various recovery modalities. Now the question arises is, what is fatigue? We should know what is fatigue and what are the effects on our body using after exercise. The fatigue is accumulating, and what are the physiological changes occurring in our body due to exercise or due to fatigue.
Okay. Participation or in training or a match leads to acute fatigue characterized by a decline in physical performance over the following hours or days. When we participate in a match, well-contested match, or in rigorous training programs, the fatigue will be accumulated and our physical performance capacity will decline for few hours. That may be for few hours or that may be for few days, depending on the rigorousness of activity. क्या वो एक्टिविटी कितना डिफिकल्ट था वो डिपेंड करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी फटीग कितनी होगी. Okay, now how we can define the fatigue? Exercise induced reduction in power generating capacity. एक्सरसाइज की वजह से जब हमारी बॉडी के अंदर पावर जनरेटिंग जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, that will be defined as a fatigue. And what are the physiological changes in our body due to fatigue? हमारी फटीग की वजह से जब हम कहीं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आएंगे? द फर्स्ट वन इज ग्लाइकोजन डिप्लीशन. जो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, दैट विल बी डिप्लीटेड. देन डिहाइड्रेशन, आवर बॉडी विल गेट डिहाइड्रेटेड. Muscle damage, there will be damage in wear and tear in muscle also. And mental fatigue, we also get fatigued psychologically. And elevated lactic and ADP level, हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक जो एसिड है वो ज्यादा कंसंट्रेट होगा, अक्यूमुलेट होगा. एंड देन सेकंड लास्ट, डिक्रीज्ड CNS फायरिंग, our reaction time will be slow. Central nervous system, the processing of central nervous system will be slow down. And high core temperature and temperature of overall body will be elevated. These are the effects of fatigue. Okay, now I will start the various recovery strategies which we can use during training or as well as match, and the time between one training session to the other. So I have divided these training modalities in two parts. The first one is ट्रेनिंग मेथोडिकल रिकवरी स्ट्रेटेजी, कि ट्रेनिंग के दौरान हम क्या क्या चेंजेस करके जो रिकवरी का प्रोसेस है उसको फास्ट कर सकते हैं. एंड सेकेंड वन इज एडिशनल ट्रेनिंग स्ट्रेटेजीज इन विच वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट न्यूट्रिशन, मसाज, वाटर इमर्शन थेरेपी विद स्पेशल अटेंशन टू वॉलीबॉल. सो ट्रेनिंग मेथोडिकल रिकवरी स्ट्रेटेजीज आर मैक्रोसाइकिल, मीसोसाइकिल, माइक्रोसाइकिल, ट्रेनिंग सेशन, active recovery, stretching, and proper tapering. As a whole, I would like to say that if we are training our athletes, proper planning and periodization, then these all modalities will be included automatically. अगर हमने अपने ट्रेनिंग को अच्छे से प्लान किया है, पीरियोडाइज किया है, तो ये ट्रेनिंग मोडेलिटीज जो हम ट्रेनिंग मेथोडिकल जो हमारे स्ट्रेटेजीज हैं ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंक्लूड होगी. हम लोग ट्रेनिंग को प्लान नहीं करते, ट्रेनिंग के साथ साथ वी हैव टू प्लान आल्सो रिकवरी आल्सो. क्लियर? सो नाउ आई विल गो वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज रिकवरी इन मैक्रो साइकिल. ओके, एज यू ऑल नो दैट एज एनुअल प्लान साइकिल broadly have three phases: preparation phase, then competition phase, and third one is transitional or phase. Okay, when you are planning for a single training annual plan, then you will keep few weeks or a single mesocycle for recovery. That will be considered as a transitional phase. So that transitional phase should be used for active recovery and relaxation. ये जो ट्रांजिशनल फेज है, जो लास्ट फेज है हमारे एनुअल प्लान का, दैट इज केप्ट फॉर रिकवरी. जब एथलीट पूरा साल ट्रेनिंग कर रहा है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, these things will accumulate fatigue, physical as well as physiological and psychological. So that transitional phase is necessary for what? To recover the athlete. So आपने जैसे आप प्रिपरेटरी फेज और कंपटीशन फेज को प्लान करेंगे, एज वेल एज आपने रिकवरी को भी प्लान करना है, ट्रांजिशनल फेज जो है उसको भी प्लान करना है. नाउ व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज वी कैन कंडक्ट इन ट्रांजिशनल फेज? सो जनरल एक्सरसाइज विद लो
टू मीडियम वॉल्यूम। जनरल नेचर की जो एक्सरसाइज है वो इसके अंदर कंडक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे विथ लो इंटेंसिटी विल बी लो एंड मीडियम वॉल्यूम, प्लस रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अंदर भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट नो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज इन दिस फेज। प्रॉपर यूज ऑफ लोड डायनेमिक्स, so the use of load dynamics should be proper from the day 1 to the last day of transition phase, the first day of your preparatory phase and the last day of your transition phase. Between these two microcycles or two days, there will be a change in load and volume and intensity in gradual way. आपने लोड एंड इंटेंसिटी को चेंज करना है, आप दोनों लोड और वॉल्यूम दोनों को हाई नहीं रख सकते। सो अगर आप प्रॉपर लोड डायनामिक्स का यूज कर रहे हैं, देन रिकवरी विल बी ऑटोमेटिकली रिकवरी विल बी देयर। देन रिकवरी इन मीसोसाइकिल्स, कि मीसोसाइकिल्स के अंदर हमने रिकवरी को कैसे प्लान करना है। प्लानिंग का ये जो पार्ट है, जो हमारे सर हैं डॉक्टर अजय जांगड़ा, उन्होंने काफी डिटेल में आपके साथ डिस्कशन किया था, तो मैं इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम सिर्फ रिकवरी प्रोसेस के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। सो हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज और प्लान रिकवरी इन mesocycle? So the last microcycle of each mesocycle should be kept for or devoted for recovery. It means the volume or training load in that particular microcycle should be low. Okay. And to reduce the load in this cycle, in this microcycle, depending on the type of microcycle, you can use various type of general exercises. Okay. Usually 4:1 or 3:1 work ratio of microcycle should be maintained. It means कि हर 3 ट्रेनिंग या लोडिंग माइक्रोसाइकिल के बाद में आपने एक रिकवरी माइक्रोसाइकिल को प्लान करना है, या फिर हर 4 माइक्रोसाइकिल ट्रेनिंग माइक्रोसाइकिल के बाद में कम से कम आपने एक रिकवरी माइक्रोसाइकिल को वहां पे ऑर्गेनाइज करना है, अरेंज करना है। और इन केस ऑफ यंगर एथलीट्स दैट रेशियो कैन बी 2:1. 3:1 is suitable for novice athlete, and for adult or a mature athlete level, the 4:1 ratio is best suitable. And then recovery in a microcycle. अभी हमने बात किया कि एक मीजो एंड मैक्रो के अंदर किस तरह से रिकवरी होना चाहिए। तो लाइकवाइज इन ए माइक्रोसाइकिल यू हैव टू प्लान रिकवरी। Avoid the monotony of training. Your training, there should be variation in your training. If there is monotony of your training, in your training, then there are more chances to accumulate fatigue, especially psychological fatigue. Arrange training tasks properly. We have, as we know, that nowadays a single training session is not devoted to only one task. We have to tackle several tasks in one session, like development of technique, development of coordination, development of speed, likewise. So the arrangement of these tasks should be proper. For example, if we have to conduct endurance training, then that should be in the last of the session, last phase of the session. But if we want to develop speed, coordination, or technical work, then that will be in the initial phase of training session, or initial phase of microcycle. And if the endurance training, then that will be in the last phase of our microcycle, and strength in the middle. At least 1 day per week should be a non-training day. हफ्ते में एक दिन आपने complete recovery के लिए devote करना है. And generally, अगर if you are going heavy training, 2 sessions per day, keep active recovery sessions after 5 sessions. हर 5 सेशन के बाद में आपने 1 या 2 सेशन आपने एक्टिव रिकवरी के लिए ऑर्गेनाइज करना है। एक्टिव रिकवरी क्या है, कैसे कर सकते हैं, दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर। और इफ वी आर ऑर्गेनाइजिंग सेशंस पर डे, देन आफ्टर 8 सेशन देयर शुड बी ए एक्टिव रिकवरी और कंप्लीट रेस्ट सेशन, 1 सेशन। Okay, likewise,
how we can organize or plan recovery, arrange recovery in training session. Till now we have discussed about macrocycle, mesocycle, and microcycle and training sessions. Likewise, if we are arranging our training session in a particular way, scientific proper way, then the onset of fatigue will be delayed. Okay, if we are then we have to focus on few things. Number one is proper warm up, then proper sequence of uh, elements of training, then rest, pause, and cooling down. So first one, warm up. If we are conducting a proper warm up, then there will be the fatigue will be delayed. Proper sequence of training elements. Okay, as we have discussed in the previous slide, in microcycle slide. Likewise, in a training session, we have to arrange various elements in a proper sequence. We have to tackle several tasks in a single session, like speed, coordination, technique, development of strength, endurance, whatever they may be. So they should be arranged in a scientific way. If we are planning speed, we have to develop speed, coordination, and technique. That should be initial phase of your training session. And if you are to organize endurance training, that will be in the last phase of your training session. And rest, pause. Okay. Depending on the nature of activity, what kind of activity you are undergoing or organizing, accordingly there should be proper rest, pause. Okay, अगर आप स्पीड ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वहां पे आपको हर रेपिटेशन के बाद में कंप्लीट रिकवरी चाहिए, बट अगर आप इंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं कंटिन्यूअस मेथड में तो वहां पे रेस्ट पॉज नहीं होगा। तो जिस तरह की नेचर है आपकी एक्टिविटी की, अकॉर्डिंगली इंश्योर रिकवरी और रेस्ट पॉज। देन कूल डाउन। रिकवरी के लिए कूल डाउन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड एज वेल एज आई वुड से दिस इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। Okay, 15 to 20 minutes are essential for cooling down, and in that phase we can use active rest like slow jogging, walking, stretching, partner massage, and stretching exercises. So if we are arranging these elements in a proper way, then recovery will be ensured. Okay, now as I told you that we will discuss the active recovery later on. What is active recovery? Engagement in low intensity exercises. Low intensity activities after completing a heavy workout is active recovery, or I would say in between the two bouts of activities. Clear? Okay, आपने देखा होगा कि जब भी आप स्पीड ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते हैं, आपके कोचेज आपको सजेस्ट करते हैं कि जब आप रिकवरी कर रहे हैं उसके लिए आपको रिकवरी का टाइम मिला है, वो बोलते हैं कि गो फॉर जॉगिंग, डू स्ट्रेचिंग ऑफ दोज मसल्स आर एंगेज्ड इन दैट पार्टिकुलर एक्टिविटी। तो दैट इज एक्टिव रिकवरी। एक्टिविटी के लास्ट में या एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के बीच के अंदर जो हम लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं फटीग को रिड्यूस करने के लिए, दैट इज एक्टिव रिकवरी। ओके, बेस्ट मीन फॉर रिकवरी विदाउट लेटिंग एथलीट्स बीइंग टोटली इनएक्टिव। ये बेस्ट मीन है रिकवरी। अगर आप पैसिव रिकवरी स्ट्रेटेजीज यूज करेंगे आपके एथलीट्स इनएक्टिव हो जाएंगे, सेडेंटरी हो जाएंगे, उनको रुकना पड़ेगा और वो उनकी बॉडी है वो वार्म डाउन होना शुरू हो जाएगी, कूल डाउन होना शुरू हो जाएगी। क्लियर? तो ये बेस्ट मेथड है व्हेन यू आर organizing your training session between one training exercise bout to second, and at the end of your training session should be interspread throughout the session. Example, between the set, repetition and intervals. That active recovery should be interspread throughout the session. आपका जो सेशन है उसमें आपने बीच बीच में एक्टिव रिकवरी को ऑर्गेनाइज करना है, लाइक एक से दूसरे सेट के बीच में, एक रेपिटेशन से दूसरे रेपिटेशन के बीच में, और बिटवीन द इंटरवल। Final phase of the training session is an ideal time. When you are going for cool down, that is ideal time to undergo active recovery. Then stretching. Okay, so stretching can be used post-training recovery intervention. Training के बाद में जब आप cool down कर रहे हैं, at that time you can use stretching as a recovery intervention. What are the benefits?
रिड्यूस मसल सोरनेस, जो मसल के अंदर जो फटीग है, जो सोरनेस है, दैट विल बी रिड्यूस्ड। मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी, आपका जो रेंज ऑफ मोशन है आप उसको मेंटेन करेंगे। एंड प्रिवेंशन फ्रॉम द इंजरीज, एंड इट विल आल्सो हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज। Daily do stretches for at least 20 minutes after exercise. After your training session, each training session, or at least one training session per day, there should be a 20-minute slot for specifically designated for stretching exercises. Use slow stretch and hold method or dynamic method for recovery. Okay. अब रिकवरी स्ट्रेचिंग के दौरान कैसे एक्सरसाइज करेंगे? स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड, आपने स्लोली मसल्स को स्ट्रेच करना है एंड देन यू हैव टू होल्ड फॉर 6 to 8 seconds, or you can go for dynamic method of recovery. In dynamic, you will move your muscle in a slowly but dynamic way. That should be dynamic, but in a slower pace, I would suggest. Okay. Then one more important thing, involve major muscles, those are involved in the activity during training or match. हमारी बॉडी के जो मेजर मसल्स है जो ट्रेनिंग के दौरान ज्यादा इन्वॉल्व हुए हैं, यू आर फीलिंग फटीग ऑन दैट पार्टिकुलर मसल, आप स्ट्रेचिंग के दौरान उनको इन्वॉल्व करेंगे। कैन बी यूज्ड बिटवीन इंटरवल सेट्स एंड रेपिटेशन एज ए पार्ट ऑफ एक्टिव रिकवरी। आप सेट्स के बीच में, रेपिटेशन के बीच में आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, लास्ट इन ट्रेनिंग मोडेलिटी, लास्ट रिकवरी स्ट्रेटजी ट्रेनिंग मोडेलिटी, एक्चुअली tapering is not specifically a recovery strategy, but properly organized tapering also leads to recovery. So first I would like to define what is tapering. Taper is a progressive and non-linear reduction of training load during a variable period of time. Tapering क्या है कि जब हम कंपटीशन से जस्ट 2 or 3 वीक्स पहले जब हम लोड को, जो हमारी ट्रेनिंग लोड है ओवरऑल, उसको रिड्यूस करते हैं एक नॉन लीनियर वे में, जैसा कि आपने देख रहा है ये साइड में जो आपको एक ग्राफ दिख रहा है उसमें दिखाई दे रहा है, एक नॉन लीनियर वे के अंदर जब आप ट्रेनिंग लोड को रिड्यूस करते हैं, दैट और इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? टू रिड्यूस फटीग, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फटीग, एंड इनहांस द अडाप्टेशन प्रोसेस। तो ये क्या है? टेपर। अल्टीमेट पर्पस क्या है? हमने अपनी परफॉर्मेंस कैपेसिटी को बढ़ाना है कंपटीशन के दौरान, तो उससे कुछ टाइम पहले, एटलीस्ट 2 or 2.5 वीक्स पहले हम टेपर को प्लान करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? प्रोग्रेसिवली रिडक्शन ऑफ ट्रेनिंग लोड। वी विल रिड्यूस ट्रेनिंग लोड इन ए प्रोग्रेसिव वे। The main idea behind this is to allow athlete to rest so that the accumulated fatigue can be reduced. हमारा मेन पर्पस क्या है? कि एथलीट को ज्यादा से ज्यादा रेस्ट मिले, so that the fatigue can be reduced and performance capacity can be enhanced. And what are the key points in tapering? Tapering बहुत broad aspect है, but मैंने कुछ key points आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। You can follow these steps for proper organization of tapering and increase of recovery of the athlete. The first one is the training load should be reduced in a systematic way. आप जो ट्रेनिंग लोड है उसको सिस्टमेटिक वे में, एक एक्सपोनेंशियल नेचर के अंदर, स्लोली या फास्ट, आप दोनों तरह से कर सकते हैं, आप रिड्यूस करेंगे। जो इसकी हमने स्टार्टिंग में अभी डिस्कशन किया कि आपने एक सिस्टमेटिक वे के अंदर इसको रिड्यूस करना है। Intensity of the training should not be compromised when you are planning tapering with the purpose of recovery of athletes. तो इंटेंसिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बिकॉज वी आर ऑर्गेनाइजिंग टेपर इन द लास्ट फेज ऑफ आवर कंपटीशन फेज, एंड दैट टाइम इंटेंसिटी शुड बी हाई एंड ट्रेनिंग वॉल्यूम शुड बी लो। ट्रेनिंग वॉल्यूम शुड बी डिक्रीज इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। तो जो ओवरऑल जो ट्रेनिंग वॉल्यूम है, सपोज कीजिए कि हम लोग कंपटीशन फेज के अंदर 20 आवर्स पर वीक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कंपटीशन हमारा अभी 2 या 3 वीक आगे है, तो इन दैट सिचुएशन ट्रेनिंग वॉल्यूम को कम करना है, ट्रेनिंग सेशन को कम नहीं करना, आप पर सेशन का जो टाइम है उसको कम करेंगे।
नॉट ट्रेनिंग सेशन को कम करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने ट्रेनिंग सेशन ही पूरा बंद कर दिया, नहीं, ट्रेनिंग के लिए जो वॉल्यूम है, जो पर ट्रेनिंग सेशन टाइम है, उसको आप रिड्यूस करेंगे। और स्टडीज हैव shows that for best result reduce 41 to 60% of total training load of pre-taper value। टैपरिंग करने से पहले आप जितना लोड दे रहे थे, सपोज कीजिए 24 आवर्स पर वीक, तो उसको आप 41 to 60% तक रिड्यूस कर सकते हैं इन द टाइम ऑफ 2 weeks। ओके, देन द बेस्ट ड्यूरेशन फॉर टैपरिंग इज 8 to 14 days। ओके, नॉट मोर देन 2 weeks। जितनी भी स्टडीज हुई है टैपरिंग के रिगार्डिंग, बेस्ट रिजल्ट आर सीन व्हेन द टैपरिंग इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर 2 weeks। तो 2 हफ्ते से ज्यादा इसको कभी भी नहीं करेंगे। ओके, तो ये हमारी थी ट्रेनिंग मोडेलिटी। जो ट्रेनिंग को हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके किस तरह से रिकवरी स्ट्रेटेजीज को इनहांस कर सकते हैं, रिकवरी प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट एडिशनल recovery strategies। Apart from these training modalities, what are the recovery strategies which can be used during training, between the training session, or during the competition? So the first one is proper nutrition and hydration. The second one is adequate sleep. Water immersion therapy, third one, and massage and psychological techniques. Now I will start with nutrition and hydration। जितनी भी स्टडीज हुई हैं न्यूट्रिशन के ऊपर, दैट शोज दैट न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन स्ट्रेटजीज हैव ए मेजर इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस। हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर, परफॉर्मेंस कैपेसिटी के ऊपर बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन स्ट्रेटजीज। जैसा कि अभी आपने देखा हुआ कुछ दिनों से साई हेड ऑफिस से जो इवनिंग को जो वेबिनार चल रहे हैं, उनके ऊपर भी न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी के ऊपर काफी फोर्स डाला गया है, स्ट्रेस डाला गया है। कार्बोहाइड्रेट है जो है, दैट इज अ प्रेफर्ड फ्यूल for during matches and as well as training। For volleyball player, carbohydrate is the most needed macronutrient, and the carbohydrate requirement for volleyball player is 9 to 10 gram per kg of body weight per day। Suppose कीजिए अगर आपका वेट 70 kg है, तो आपको पर केजी 9 to 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट है। एंड लाइकवाइज इन फीमेल दैट रिक्वायरमेंट इज 6 to 7 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट पर डे। ये एक दिन का रिक्वायरमेंट है। एंड नेक्स्ट वन इज प्रोटीन। एज यू नो दैट ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड कंपटीशन द मसल गॉट फटीग्ड एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वियर एंड टियर इन मेजर मसल। So protein is the most important second important macronutrient for muscle repair। The protein requirement for volleyball player is 1.4 to 1.7 gram per kg per day। Suppose मैंने आपको बताया जैसे आपका वेट 70 kg है, तो आप उसको 1.4 to 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो that will be your daily protein requirement। And in case of female athletes, that is 1.2 to 1.4 or 5। Okay, and one more thing I would like to share here: if the athlete's diet is very balanced and he is taking adequate amount of pulses and other protein sources from in the diet, then there is no need of additional supplementation, protein supplementation। अगर आपका एथलीट, वॉलीबॉल का प्लेयर, डाइट के अंदर प्रॉपर प्रोटीन बैलेंस डाइट ले रहा है, तो उसे एडिशनल प्रोटीन सप्लीमेंटेशन का जरूरत नहीं है। एंड स्पेशली इन केस ऑफ यंग एथलीट्स बिल्कुल भी नहीं है। एलीट एथलीट्स की डिमांड ज्यादा है, उनके ऊपर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन लोड ज्यादा है, मसल में वियर एंड टियर ज्यादा होता है, बिकॉज दे अंडरगो लॉट ऑफ हैवी ट्रेनिंग, रिगरस ट्रेनिंग। सो इन दैट केस there may be a requirement of additional protein supplementation, but in case of younger athletes, there is no need of additional protein supplement। Fat is also essential for volleyball players, and requirement is 1 gram per kg of body weight। If your body weight is 70 kg, then 70 gram is your fat requirement। Okay, now one more thing: instead of having two or three heavy meals
ensure that your athletes take meal every 2 or 3 hours. हर 2 या 3 घंटे में वो कुछ ना कुछ उनको खाने को मिले, तो instead of 2 or 3 heavy meals. Post workout diet is very crucial for athletes. वर्कआउट के बाद में या कंपटीशन के बाद का जो डाइट है वो बहुत क्रूशियल है, एंड रिसर्च शोज दैट विद इन द 2 आवर्स, जो आप कंपटीशन के 2 घंटे के अंदर अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्स डाइट लेते हैं, तो दैट विल बी इनहांस्ड योर रिकवरी बाय 25%. आपकी जो रिकवरी प्रोसेस है वो 25% तक बढ़ जाएगा. और उसका रेशियो क्या होना चाहिए? 4:1. जो आपने डाइट लेना है कंपटीशन के बाद, जस्ट मैच के बाद या फिर ट्रेनिंग के बाद, दैट विल बी इन द 4:1 रेशियो. मतलब आपका जो अमाउंट है वो कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू प्रोटीन. देन हाइड्रेशन गाइडलाइन. एथलीट शुड स्टार्ट दियर ट्रेनिंग और मैच वेल हाइड्रेटेड. अगर हाइड्रेशन लेवल जो है उनका वो अच्छा होना चाहिए. दे शुड बी वेल हाइड्रेटेड बिफोर द कंपटीशन एंड मैच. पोस्ट वर्कआउट और मैच के बाद में या वर्कआउट के बाद में उनको एटलीस्ट पानी पीना चाहिए 1 लीटर, और आई वुड सजेस्ट 1.5 लीटर फ्लूइड फॉर द एवरी 1 kg बॉडी मास लॉस्ट. अब क्या करेंगे? जस्ट चेक द वेट बिफोर द ट्रेनिंग एंड आफ्टर द ट्रेनिंग. एंड अगर वहां पे 1 kg का वहां पे फ्लूइड लॉस है, सपोज अगर आपका वेट 1 kg कम है, तो वहां पे मतलब आपने 1 kg फ्लूइड लॉस आपका हुआ है, तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए, रिकवर करने के लिए आपने उससे 1.5 टाइम ज्यादा लिक्विड लेना है, फ्लूइड लेना है. क्लियर? फ्रूट जूसेस एंड नॉन कैफिनेटेड स्पोर्ट्स ड्रिंक्स containing electrolytes are best choices for training and competition. फ्रूट जूस है वो बेस्ट है. नॉन कैफिनेटेड स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, जिन स्पोर्ट्स ड्रिंक्स के अंदर कैफीन नहीं है, दैट आर बेस्ट सुटेबल फॉर वॉलीबॉल प्लेयर. They should also have electrolytes. Fluids, जो फ्लूइड आप कंज्यूम कर रहे हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ड्यूरिंग द मैच, प्री और पोस्ट द ट्रेनिंग, दैट शुड बी कूल. थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, वो जल्दी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा. और जो हमने अभी एक फटीग का एक जो मैग्नीट्यूड ऑफ फटीग के अंदर पढ़ा था, क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, तो उसमें कौन सा एलिवेटेड कोर टेम्परेचर, जो हमारा कोर टेम्परेचर है बॉडी का, वो एलिवेट हो जाएगा. तो उसको लो करने में, मिनिमाइज करने में वो हेल्प करेगा. बॉडी के अंदर जो ठंडा पानी है वो जल्दी एब्जॉर्ब होगा. एंड इट शुड बी फ्लेवर्ड. इन केस ऑफ यंगर एथलीट, अगर पानी के अंदर थोड़ा फ्लेवर मिला होगा, कुछ भी टेस्टी होगा, तो वो बच्चे उसको ज्यादा यूजफुल है. एंड इट शुड कंटेन 6 to 8% ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू एनहांस परफॉर्मेंस. हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट है वो ड्यूरिंग कंपटीशन हमारा एनर्जी सोर्स है, तो 6 to 8% कार्बोहाइड्रेट शुड बी देयर. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड सोडियम टू प्रमोट रिहाइड्रेशन. रिहाइड्रेशन को प्रमोट करने के लिए वहां पे सोडियम भी उसके अंदर होना चाहिए. ओके, तो एक कुछ स्टडीज हुई है हाइड्रेशन गाइडलाइंस के बारे में, एंड आई वुड लाइक टू शेयर दीज आउटकम्स ऑफ दीज स्टडीज विद यू. द फर्स्ट वन इज द study shows that the factor influencing fluid replacement during the exercise includes कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपका जो हाइड्रेशन को है वो इन्फ्लुएंस करेंगे. नंबर 1 इज प्रोविजन ऑफ इंडिविजुअल वाटर बॉटल्स टू ईच एथलीट. स्टडीज ये बोलती हैं कि जिन बच्चों के पास, जिन एथलीट्स के पास अपना इंडिविजुअल वाटर बॉटल है, वो ज्यादा हाइड्रेटेड रहेंगे. तो आपने अपने ट्रेनिंग के लिए ये इंश्योर करना है कि हर एक के पास अपना इंडिविजुअल वाटर बॉटल हो. देन पेरोक्सिमिटी ऑफ वाटर बॉटल ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन. और जब ट्रेनिंग चल रही है तो वो जो वाटर बॉटल थी वो कितना दूर थी उनसे. अगर नजदीक है तो जैसे वो डिहाइड्रेट फील करेंगे वो उसमें से पानी पिएंगे, बट अगर बहुत दूर है तो हो सकता है वो अवॉइड करें. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट विच इन्फ्लुएंस हाइड्रेशन स्टेटस. And encouragement to drink. How many times you are encouraging your athletes to drink water? Then duration and number of breaks. कितना breaks है आपके ट्रेनिंग के बीच में. Then number of substitution and timeouts and technical timeouts, rules of the game. And athletes awareness of their own sweat rate. जो athletes ज्यादा aware थे उनकी sweat rate के बारे में,
that are tend to be more hydrated, कि उनको पता है कि उनकी sweat rate ज्यादा है. Clear? So these are the findings from a few studies from the based on hydration status of the athletes. तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं और हम इनको ट्रेनिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं. Now the next thing is adequate sleep. स्लीप जो है हमारा रिकवरी का एक बहुत बड़ा जो मीडियम है, एक बहुत बड़ा रिकवरी स्ट्रेटजीज है. इफ वी यूज दिस फॉर प्रॉपरली, use this strategy properly. Adequate sleep is essential for recovery from the training and match. मैच चाहे वो मैच हो चाहे वो ट्रेनिंग हो, उससे रिकवरी के लिए हमें adequate लेवल ऑफ जो स्लीप है वो जरूरी है. Player require a minimum sleep of 8 to 10 hours. यूजुअली जो लेमैन पॉपुलेशन उनको 7 to 8 hours सजेस्ट किया जाता है, बट जो एथलीट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, बिकॉज दे आर गोइंग रिगोरियस ट्रेनिंग, हार्ड ट्रेनिंग, then they need 8 to 10 hours of sleep per night. Some of consequences of inadequate sleep includes नींद कम होने की वजह से तो कौन सी consequences हो सकती हैं, वो इस तरह से हैं. नंबर 1 इज reduced academic performance. अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे, 8 to 10 hours का स्लीप नहीं ले रहे, then your academic performance will be reduced. Reduction in sports performance as well as your sports performance will be reduced. Impaired decision making ability. आपका जो decision making जो ability है वो weak हो जाएगा. Mood disturbance. Your mood will be disturbed. You will be irritated, and so many negative emotions will be there. And reduction in immune function. Your immunity will be very less if you are not taking proper sleep. Okay, now napping and extended sleep. Napping किसको बोलते हैं कि जब आप 20 to 30 minutes के लिए हल्का सा झपकी लेते हैं नींद का, that will be considered called as napping. And extended sleep, proper extended sleep मतलब जब आप normal टाइम से ज्यादा टाइम के लिए सोते हैं तो उसका हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. So 30 minutes of napping has positive effect on playing performance. It has been found in studies, research के अंदर पाया गया है कि जो 30 मिनट का नैप है that has positive impact on your playing performance. In case of sleep loss, athletes may fit with brief nap. अगर एथलीट्स को किसी वजह से रात को नींद नहीं आया, वो प्रॉपरली नहीं सो पाया बिकॉज ऑफ ट्रैवल, बिकॉज ऑफ चेंज इन द लोकेशन, आप नई जगह पे जाके प्रॉपरली नहीं इतना जल्दी एडजस्ट कर पाते, देन दे कैन हेल्प विद नैप. इफ मैच इज टू बी प्लेड इन आफ्टरनून और इवनिंग, अगर आपका जो मैच है वो दोपहर में है या फिर शाम को है, देन ए नैप ऑफ 20 to 30 मिनट, 20 से 30 मिनट का नैप बिफोर 2 to 3 hours of the match or training will have positive effect on your performance. आपका मैच अगर शाम को है, दोपहर को है, तो उससे पहले 2 या 3 घंटे पहले अगर आप 20 या 30 मिनट के लिए नींद लेते हैं, सोते हैं, that will have a positive effect on your playing performance. तो ये एक बहुत सिंपल चीज है और एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग एंड एट द टाइम ऑफ कंपटीशन हम इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं. मेक श्योर कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो कम से कम 20 या 30 मिनट के लिए सोएं, कम मैच से 3 घंटे पहले. ओके, इसी के साथ साथ एक्सटेंडेड स्लीप. एक्सटेंडेड स्लीप क्या है? इफ यू आर टेकिंग स्लीप फॉर 8, सपोज यू आर टेकिंग स्लीप फॉर 8 hours per day, and extended sleep will be that you increase the time of your sleep, like 9 hours, 10 hours, half an hour or 1 hour, let's say. So extended sleep also have very positive effect on performance, and it is also a very effective means of recovery. It helps in faster recovery, increased motor performance and positive mood and concentration. अभी जो हमने डिस्टर्ब स्लीप के जो साइड इफेक्ट्स पढ़े थे, एक्सटेंडेड स्लीप में उनका रिवर्स हो जाएगा. हमारी जो परफॉर्मेंस है, मोटर परफॉर्मेंस है, दैट विल बी इंक्रीज्ड. वी विल हैव ए पॉजिटिव मूड, द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड कंसंट्रेशन विल बी हाई. Studies shows that increased amount of sleep significantly enhance performance in athletic performance. जितनी भी रिसर्च है, स्टडीज है, वो ये शो करती हैं कि जो हमारी जो एक्सटेंडेड स्लीप है वो एथलेटिक परफॉर्मेंस को इन्हांस करेंगे.
ओके, आई वुड लाइक टू शेयर वन स्टडी. मैंने इसके अंदर नहीं डाला इसको. एक स्टडी हुआ था एथलीट्स के ऊपर. उनको एक्सटेंडेड स्लीप एक्सपोज किया गया, उनको ज्यादा सोने के लिए दिया गया 3 घंटे के लिए. 10 एथलीट्स को, देवर बास्केटबॉल प्लेयर, तो उन प्लेयर्स को 10 घंटों के लिए सोने का मौका मिला. रिसर्च के अंदर उनको 1 घंटे का एक्स्ट्रा स्लीप दिया गया. यूजुअली वो 9 घंटे सो रहे थे, बट उनको बाद में 1 घंटा एक्स्ट्रा करके उनको 10 घंटे सुलाया गया. तो आफ्टर फ्यू वीक्स, 4 वीक्स, देयर वर सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन एथलेटिक परफॉर्मेंस. उनकी ओवरऑल जो एथलेटिक परफॉर्मेंस थी, चाहे वो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट से बात करिए, टेक्नो-टेक्निकल एस्पेक्ट से बात करिए, दैट वाज इंक्रीज्ड. तो आप एक्सटेंडेड स्लीप भी यूज कर सकते हैं. आप जो स्लीप का टाइम है उसको बढ़ा के रिकवरी प्रोसेस को enhance कर सकते हैं. Then next one is water immersion therapy, like cold water bath, ice bath, hot water bath, contrast bath. तो ये जो थेरेपीज हैं, ये भी बहुत एक अच्छा मीन है रिकवरी का. फॉर टीम स्पोर्ट्स रिकवरी यूजिंग इमर्शन प्रोवाइड्स ए प्रूवन बेनिफिट. हमारे जो इमर्शन थेरेपीज है टीम स्पोर्ट्स के लिए, दे आर वेरी बेनिफिशियल. The current evidence suggests that water immersion therapies are comparatively better than using passive recovery or rest after exercises. जो water immersion therapies हैं, they are comparatively much better, much beneficial than passive recovery. तो passive recovery आपने बच्चों को कोई एक्टिविटी करवाया, उसके बाद में बोला ओके रेस्ट करेंगे. तो apart instead of that passive recovery modalities, these water immersion therapies are much more beneficial. मेन जो वाटर थेरेपीज है जिनके बेनिफिट्स हमारे वॉलीबॉल प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा देखने को मिला है, दीज आर थर्मोनेचुरल वाटर इमर्शन. जो नॉर्मल टेम्परेचर का जो वाटर है उसके अंदर वाटर बॉडी को इमर्स करना, थर्मोथेरेपी और हॉट वाटर इमर्शन, क्रायोथेरेपी, कोल्ड वाटर इमर्शन, और कंट्रास्टिंग वाटर टेम्परेचर और कंट्रास्ट बाथ, इन विच वी द बॉडी इन कोल्ड एज वेल एज हॉट वन बाय वन. Okay, general guidelines for use these strategies. I will not go in much detail of these therapies because even a single therapy will take the entire time we have. So I will provide overall guidelines to how to use these therapies. These therapies can be used after training or match to enhance recovery. Just after training or match, you can use any of these therapies. 10 to 20 minutes of therapy is sufficient for desired result. 10 से 20 मिनट टाइम सफिशिएंट है फॉर डिजायर्ड रिजल्ट. जो हमें रिजल्ट चाहिए उसके लिए ये टाइम सफिशिएंट है. इफ द टाइम बिटवीन 2 मैचेस इज लेस, अगर हमारे पास 2 मैचेस है उनके बीच में टाइम कम है, इमर्शन इन कोल्ड वाटर शुड बी अवॉइडेड. कोल्ड वाटर थेरेपी शुड बी अवॉइडेड. अगर 2 मैच खेलने हैं, सपोज 1 मैच इन मॉर्निंग सेशन एंड 1 मैच इन इवनिंग सेशन, देन कोल्ड वाटर बाथ शुड बी अवॉइडेड. After the match or heavy workout, contrast water immersion should be preferred. जो ट्रेनिंग के बाद में जो contrast water immersion है, that have proven it. So how to use this? At least must immerse alternatively between the 2 baths. भी हमने क्या करना है कि जो कोल्ड वाटर थेरेपी है और हॉट वाटर थेरेपी है, उन दोनों को यूज करना है. इनका जो टेम्परेचर क्या रहेगा वो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो हॉट वाटर थेरेपी है उसमें जो वाटर का जो टेम्परेचर है दैट शुड बी अबाउट 36 डिग्री सेल्सियस, एंड कोल्ड वाटर थेरेपी में दैट शुड बी बिलो 15 डिग्री सेल्सियस. तो हम अल्टरनेटिवली इन दोनों जो बाथ टब्स होंगे, कोल्ड वाटर, वन इज कंटेनिंग कोल्ड वाटर एंड वन इज कंटेनिंग हॉट वाटर, इमर्स फॉर 60 to 120 सेकेंड इन कोल्ड वाटर. हम कोल्ड वाटर के अंदर 1 से 2 मिनट के लिए अपनी बॉडी को डुबोएंगे, फॉलोड बाय इमीडिएटली इमर्शन फॉर 120 सेकेंड्स इन हॉट वाटर. पहले हम 1 या 2 मिनट के लिए हम अपनी बॉडी को या किसी बॉडी मेजर बॉडी पार्ट्स को हम कोल्ड वाटर के अंदर डिप करेंगे. द टेम्परेचर शुड बी 8 to 15 डिग्री सेल्सियस, एंड आफ्टर दैट वी विल डिप आवर बॉडी इन हॉट वाटर टब.
that the temperature of that water tub should be 38 to 42 degrees Celsius. Subject alternated between the two baths for a total of 15 to 20 minutes. As I told you earlier, that 15 to 20 minutes are sufficient. The time between end of the exercise and recovery period should be as short as possible. ट्रेनिंग के बाद जैसे ही आपने कूल डाउन किया, उसके बाद जितना जल्दी आप इन थेरेपीज को यूज करेंगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा. ओके, नाउ मसाज. As water immersion therapy, massage also has several benefits, and its benefits are default or multidimensional. Like you will get physical relaxation, mental relaxation, and as well as emotional relaxation. The important factors, effects of sports massage includes reduced muscle soreness. जो ट्रेनिंग के बाद में, कंपटीशन के बाद में आपको जो मसल सोरनेस हो रहा है, that will be reduced. इंक्रीज ब्लड फ्लो. अब जब मसाज करेंगे तो आपके बॉडी पार्ट में, मेजर मसल्स में जो ब्लड फ्लो है, दैट विल बी इंक्रीज. पेन एंड एंजाइटी रिडक्शन. मसाज ट्रेनिंग के बाद में जो आपके मसल्स के अंदर जो इन्फ्लामेशन है, जो पेन की जो फीलिंग है और जो एंजाइटी है, वो रिड्यूस होगी. इंक्रीज फीलिंग ऑफ वेल बीइंग. आपकी जो इमोशनल है स्टेट है वो बहुत अच्छी होगी और आपकी जो आप अच्छा फील करेंगे. स्मूथ मूवमेंट्स एट जॉइंट. जो जॉइंट मोबिलाइजेशन है, दैट विल बी स्मूदर एंड इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन सम केसेस लाइक स्प्रेन स्ट्रेन फॉर रिहैबिलिटेशन एंड ट्रीटमेंट एज वेल. तो मसाज के कई सारे बेनिफिट्स हैं. ये फिजिकली, मेंटली और इमोशनली काम करेगा. मसल जो सोरनेस है उसको रिड्यूस करेगा. हमारी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है उसको बढ़ाएगा. जो पेन का जो फीलिंग है उसको रिड्यूस करेगा. और हमारा जो जॉइंट का जो मोबिलाइजेशन है वो फास्ट होगा. और रिहैबिलिटेशन पर्पज से भी आप कुछ इंजरीज के अंदर इसको यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ प्री इवेंट मसाज गाइडलाइंस. कि किसी इवेंट से पहले मसाज को कैसे यूज करना है. प्री इवेंट मतलब जस्ट बिफोर द कंपटीशन, ट्रेनिंग और मैच. सेल्फ मसाज और a short session with measure can be used. आप short self massage 10 to 15 seconds, 10 to 15 minutes सेल्फ मसाज कर सकते हैं. फिर आप मेशर के साथ भी सेशन ले सकते हैं. 15 to 20 minutes of massage before 4 hours of the match can help to prepare the body and mind. मैच से 4 घंटे पहले अगर आप 15 से 20 मिनट का एक अच्छा मसाज लेते हैं तो दैट विल प्रिपेयर योर बॉडी एज वेल एज माइंड फॉर द कंपटीशन. तो हम इसमें पार्टनर्स के अंदर या अगर मेशर्स वहाँ पे जो मसाज स्पेशलिस्ट है वो अवेलेबल है तो उसके यूज से इस मॉडलिटी को हम लोग यूज कर सकते हैं. देन सेल्फ मसाज फॉर 5 to 10 मिनट्स इज बेनिफिशियल जस्ट प्रायर टू द वार्म अप. अगर वार्म अप से पहले 5 या 10 मिनट के लिए हम अपनी बॉडी को सेल्फ मसाज लेते हैं, मेजर मसल्स को रिलैक्स करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द परफॉर्मेंस. Concentrate on major muscle groups to be used in the upcoming performance. तो जो भी हमें ट्रेनिंग करना है या फिर मैच खेलना है तो उसके अंदर जो भी मेजर मसल्स यूज होंगे उनको हमें कंसंट्रेट करना चाहिए. तो ओवरऑल शॉर्ट मसाज हम लोग ले सकते हैं. अगर हम मैशर के साथ या सेल्फ मसाज भी लेंगे, कंपटीशन से 4 घंटे पहले हम 15 to 20 मिनट्स का एक सेशन ले सकते हैं. इंटर इवेंट स्पोर्ट्स मसाज गाइडलाइन. एक इवेंट से दूसरे इवेंट के बीच में, सपोज बिटवीन द 2 ट्रेनिंग सेशंस, वन इज मॉर्निंग एंड वन इज इवनिंग और 2 मैचेस. इफ द मैच इज नेक्स्ट डे, अगर आपने एक मैच आज खेला एंड द नेक्स्ट मैच इज ऑन द नेक्स्ट डे, देन 60 to 90 मिनट्स मसाज सेशन कैन बी द बेस्ट विद द हेल्प ऑफ मेशर. ओके, तो अगर आपका एक मैच अगले दिन है तो उस केस में आप मसाज को यूज कर सकते हैं. मसाज थेरेपी है वो 60 to 90 मिनट्स के लिए सॉफ्ट मसाज थेरेपी ले सकते हैं. फोकस ऑन रिकवरी ऑफ द मसल ग्रुप मोस्ट यूज. इस केस में हमारा मेन फोकस क्या रहेगा कि जो मैच के दौरान या जो ट्रेनिंग के दौरान जो हमारे मसल यूज हुए हैं उसको हम इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे. टेक्निक्स कौन कौन सी यूज कर सकते हैं? देयर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स इन मसाज. लाइक कंप्रेशन आप दबाएंगे, सर्कुलर फ्रिक्शन सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे, ब्रॉडनिंग मसल्स को ब्रॉड करेंगे, जॉइंट मोबिलाइजेशन एंड स्ट्रेचिंग. These are the techniques which can be used for the massage
in inter-event sports massage. If the time is short between the events, अगर एक मैच से दूसरे मैच के बीच में टाइम कम है, then self massage without any oil application can be used. And post event massage guideline, किसी इवेंट के बाद में किस तरह से आप मसाज थेरेपी या मसाज जो को यूज कर सकते हैं एज ए रिकवरी स्ट्रेटजी. बी शॉर्ट 10 to 15 मिनट्स. अगेन आपको 10 to 15 मिनट्स के लिए आप मसाज ले सकते हैं, और लॉन्गर 30 to 90 मिनट्स इफ इट अकर्स एन आवर और मोर आफ्टर द इवेंट. अगर आप जस्ट उसी टाइम ले रहे हैं मैच के बाद में तो 10 to 15 मिनट्स आर सफिशिएंट, और अगर 1 घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका है देन 30 to 90 मिनट मसाज इज सफिशिएंट. अप्लाई लाइटर प्रेशर, बहुत डीप मसाज नहीं लेंगे. देन नेक्स्ट थिंग इज गिव स्पेसिफिक अटेंशन टू द मसल स्ट्रेस्ड इन द परफॉर्मेंस. जो परफॉर्मेंस के अंदर जो मसल्स को बार बार ये चीज आ रही है कि जो मसल्स ज्यादा स्ट्रेस हुए हैं, यू हैव टू पे अटेंशन ऑन दीज मसल्स. यूज टेक्निक्स टू फ्लश आउट द मेटाबॉलिटीज एंड रिलैक्स टेंस्ड मसल्स. आपने वो टेक्निक्स यूज करनी है जो मसल्स के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोड्यूस हुए हैं, मेटाबॉलिक, उनको रिड्यूस करे और मसल्स की टेंशन को कम करे. तो स्लाइडिंग, स्ट्रोक, कंप्रेशन, नीडिंग, जॉइंट मोबिलाइजेशन एंड स्ट्रेचिंग, these are the techniques you can use after the exercise or training. And apart from these, there are several psychological relaxation techniques which can be used for the massage. And psychological techniques have very beneficial and these very beneficial for reduction of stress related emotions. आपके जो स्ट्रेस रिलेटेड इमोशंस है, जो कंपटीशन से कई बार पहले या फिर जब हैवी ट्रेनिंग के बाद में आपके माइंड के अंदर आते हैं, एंजाइटी, एंगर, मूड डिस्टर्बेंस, उनको रिड्यूस करेगा एंड इट विल प्रिपेयर यू मेंटली फॉर द अपकमिंग ट्रेनिंग सेशन. Psychological relaxation techniques include progressive muscle relaxation, guided imagery, biofeedback, self-hypnosis, deep breathing, etc. All of these can be used to relax the performer and potentially benefit athletic performance. The techniques I have discussed above, these all have positive benefits on our athletic performance and can be used as well for the performance enhancement. So we will, in brief, we will discuss all the techniques. The first one is autogenic training. In autogenic training, you have to teach your trainees to concentrate on the physical sensations of warmth, heaviness and relaxation in different parts of the body. आप उनको बोलेंगे, अब आप उनको वर्बली कमांड देंगे, स्पीच देंगे कि आप महसूस कीजिए कि आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो गर्म हो रहे हैं, उनके अंदर सेंसेशन हो रहा है, वो हैवी हो रहे हैं और वो रिलैक्स हो रहे हैं. तो दैट इज ऑटोजेनिक ट्रेनिंग. तो ये ट्रेनिंग आप यूज कर सकते हैं. इन डिटेल द प्रोसीजर ऑफ दीज टेक्निक्स कैन बी फाउंड ऑन इंटरनेट. आप इंटरनेट के ऊपर आपको हर एक टेक्निक का डिटेल्ड प्रोसीजर आपको मिलेगा इफ यू वांट टू यूज. देन बायोफीडबैक असिस्टेड रिलैक्सेशन. बायोफीडबैक ट्रेनिंग क्या है कि आपने कई बार अगर इफ यू हैव विजिटेड साइकोलॉजिकल लैब्स देन यू हैव मस्ट हैव सीन द इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर बायोफीडबैक ट्रेनिंग. In these techniques, various electronic devices are used to teach you produce changes in your body that are associated with relaxation and reduction in muscle tension. And then deep breathing or breathing exercises. You can also use the deep breathing or breathing exercises for better recovery of your athletes and psychological relaxation. In deep breathing, just tell your athletes to take one deep breath and count slowly to the 4 and then hold for 2 seconds and then slowly breathe out. Breathe in for 4 seconds, hold for 2 seconds and again breathe out in 4 seconds. That will divert their attention from the negative emotions and it will also helpful in reduction of anxiety and stress level. And imagery जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इमेजरी में हम लोग क्या करेंगे, जो प्लेजेंट फीलिंग्स है उनको इमेजिन करेंगे.
आपने एथलीट्स को बोलना है कि आप इमेजिन कीजिए कि आप पोडियम के ऊपर जा रहे हैं, बेस्ट प्लेयर आप निकल रहे हैं, बेस्ट राइडर, बेस्ट अटैकर, बेस्ट मिडल ब्लॉकर, आप लोग आपको अवार्ड मिल रहा है, आपकी टीम जीत रही है, या फिर जो बेस्ट उनके जो मोमेंट्स रहे हैं लाइफ के, आप उनके बारे में उनको इमेजिन करने के बारे में बोलेंगे. दैट विल बी द इमेजरी. एंड नेक्स्ट वन इज प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक, also known as Jacobson's progressive muscle relaxation technique. It involves the tightening and relaxation of various muscle groups. आप अपने मसल्स को voluntarily contract करेंगे and relax करेंगे. आप मसल्स को टाइट करेंगे और रिलैक्स करेंगे. आपने प्रोग्रेसिवली मसल्स को रिलैक्स करना है, आपने उनको टाइट करना है. टाइटनिंग ऑफ द मसल, रिलैक्सिंग द मसल. प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन इज ऑफन कंबाइंड विद गाइडेड इमेजरी. आप इसको जो इमेजरी है जो हमने ऊपर डिस्कशन किया है और ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज है उनको एक कॉम्बिनेशन में भी इसको यूज कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज सेल्फ हिप्नोसिस. इन सेल्फ हिप्नोसिस प्रोग्राम पीपल आर थॉट टू प्रोड्यूस a relaxation response when promoted by the phrase or non-verbal cue. इसमें क्या होगा कि आपको कुछ cues दिए जाएंगे, तो साइकोलॉजिस्ट वो क्यू देगा, that will be verbal और नॉन वर्बल, और आपसे कुछ आपने उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करना है. Apart from these relaxation techniques, there are several techniques I have not discussed in this class because जो टाइम था हमारे पास इतना नहीं था. लाइक हम सोना बाथ, स्टीम बाथ भी यूज कर सकते हैं, और उनके लिए हमारे पास बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है जहाँ से आप उनका जो प्रॉपर यूज कैसे करना है, अगर आपके पास वो फैसिलिटीज अवेलेबल है, आपकी जो ट्रेनिंग जो स्टेडियम है, जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे सोना बाथ, स्टीम बाथ अवेलेबल है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं. तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड प्लीज टाइप योर क्वेश्चंस इन चैट बॉक्स इफ यू वांट एनी क्लैरिफिकेशन ऑफ आंसर. थैंक यू वेरी मच. ओके, कुछ कोचेस पूछ रहे हैं कि ये पीडीएफ कहाँ से मिल रही है, तो मैं आपको ग्रुप्स में सेंड कर दूंगा या उसको भेज दूंगा. देन दैट ही विल सर्कुलेट टू ऑल द कोचेस इन ऑल द ग्रुप्स. अंकुश, इज इट ओके? Yeah. Shall we wait for questions for next 4-5 minutes? One coach is asking, sir, if the cold and hot water therapy affect the sports performance. So as I told you earlier when we were discussing about the water immersion therapy, that contrast bath is best proven water immersion therapy for improved athletic performance. तो आप कॉन्ट्रास्ट जो बात है, हॉट एंड कोल्ड बाथ थेरेपी है, आप उसको यूज कर सकते हैं. इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं. आप इवन आप जस्ट आफ्टर आप ट्रेनिंग इसको भी आप यूज कर सकते हैं. और एक और बात मैं इसके साथ ऐड करना चाहूंगा, इट डजंट मीन दैट कोल्ड alone cold water therapy or alone hot water therapy are not beneficial. They are also beneficial. Even ice bath is also beneficial for recovery and relaxation. So these water immersion therapies you can use anytime. But just keep in mind that when the time is less between two training sessions, then avoid cold water bath or ice bath. Okay, one coach is asking how to calculate BMI, body mass index. Then there are a lot of formulas and calculators are available on the internet, and as well as you may get that calculator in your phone as well. So you can calculate by filling two values. One is your height in centimeters and your weight. आप अपना जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है, वो बहुत सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, और इवन आजकल जो आपके फोन के अंदर जो कैलकुलेटर्स हैं उनके अंदर भी BMI कैलकुलेटर्स होते हैं. तो आप उसको यूज करके आपका BMI है वो कैलकुलेट कर सकते हैं.
Ankush, okay? Yes. Okay, one question is also there. Is there any difference between stretching and flexibility exercises? So I would like to differentiate this. The stretching, जब हम stretching word use कर रहे हैं, it means we are talking about a particular muscle. हम एक muscle को stretch कर रहे हैं. But when we are using the term flexibility, that is joint oriented. हम किसी particular के ऊपर range of motion का बात कर रहे हैं. जब हम flexibility improve करेंगे, range of motion improve करेंगे, तो वो कब improve होगा? जब हमारे joint के ऊपर जो muscle attached हैं, वो stretch होंगे. तो स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों के अंदर स्लाइड सा डिफरेंस है. स्ट्रेचिंग क्या है? मसल को स्ट्रेच करना. एंड फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? रेंज ऑफ मोशन एट ए पार्टिकुलर जॉइंट. आपके जॉइंट के ऊपर कितना रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल है? Okay, one question is that after a struggling match, is it okay to wash hands and sprinkle water on face? After some time, you can take any water immersion therapy, but not like that. जैसे कि आप ग्राउंड से बाहर निकले और निकलते ही आपने अपनी बॉडी को वाटर में डिप कर दिया, ऐसा नहीं है. Just give some time to your body to get cool down. अपनी स्वेटिंग को कम होने दीजिए. उसके बाद में आप कोई भी वाटर इमर्शन थेरेपी को यूज कर सकते हैं. जो स्ट्रेटजीज है उनको यूज कर सकते हैं. Okay, one question is after high intensity training, so then how many time for give for recovery? Okay, अगर जो भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, काइंड ऑफ जैसा कि हमने स्टार्टिंग में जो फैक्टर्स के ऊपर डिस्कशन किया था कि टाइप ऑफ ट्रेनिंग, की ट्रेनिंग का टाइप कैसा है, दैट विल बी अफेक्ट रिकवरी प्रोसेस. अगर हम हाई वॉल्यूमिनस ट्रेनिंग कर रहे हैं जिसका वॉल्यूम बहुत हाई है, तो हमारी रिकवरी प्रोसेस है वो ज्यादा टाइम लेगा. ठीक है. अगर हम इंटेंसिव ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे हमने कोई हाई इंटेंसिव स्पीड वर्क किया, तो उसके लिए हमें रिकवरी कम चाहिए. इसके अलावा जो मेजर मसल है जो बॉडी के, वो जल्दी रिकवर होंगे इंस्टेड ऑफ स्मॉलर मसल ग्रुप. तो जिस तरह की ट्रेनिंग का नेचर होगा, उस तरह का ही हमारा रिकवरी होगा. और एक तो अगर हमारा हाई इंटेंसिटी बहुत वेल कंटेस्टेड मैच खेला है हमने एलीट लेवल पे, तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली जो ग्लूकोज लेवल है, ग्लाइकोजन लेवल है, वो ऑलमोस्ट डिप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है. एंड इट विल टेक अप्रोक्सीमेट 24 आवर टू रिकवर इट कंप्लीट. हमें कम से कम 24 घंटे चाहिए कंप्लीटली रिकवर करने के लिए. और वो भी तब व्हेन वी आर यूजिंग वेरियस रिकवरी स्ट्रेटजीज लाइक पोस्ट कंपटीशन hydration, post competition diet, and like massage, water immersion therapy. If we are using these therapies, then it will take minimum of 24 hours after a well conducted match to recover completely. Okay, कोई पूछ रहे हैं कोचेस कि जो आपकी जो म्यूजिक थेरेपी है, that is also used in some cases as a mean of recovery. तो जो साइकोलॉजिकल रिलैक्सेशन के लिए जो म्यूजिक थेरेपी है उसके प्रूवन बेनिफिट्स हैं. इसके अलावा एट द टाइम ऑफ कंपटीशन अगर आप म्यूजिक यूज कर रहे हैं, जो स्टडीज ये बोलती हैं कि जो आपके जो ट्रेनीज हैं उनका जो एक्सर्शन है या जो एफर्ट लेवल है वो बढ़ जाता है. Okay, Ankush, I think all the question has been answered. Yes. Should we finish? Yeah, we will finish. Okay, once again, thank you very much to all the respected coaches and dear volleyball family. Thank you very much. Should I leave? Rakesh? Yeah. Rakesh? Yes. And It over? yes. Now. Okay. Yeah, we'll finish now. You may leave. We will leave. Okay, thank you once again.